नमस्कार एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ रूबरू ऑन एमएसटीवी। मैं हूं आपके साथ स्तुति कटारा और रूबरू पर हम ऐसे गेस्ट को देखते हैं, ऐसे गेस्ट से बात करते हैं जिनकी पर्सनालिटी एक डिफाइंड नहीं होती। आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत सारा कुछ किया है। शी इज अ राइटर, शी इज एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स वेलकम मिस डॉक्टर योजना सेन जैन मैम। वी वेलकम यू मैम। Thank you so much, Stuti. So, ma'am, first of all, I'm just gonna ask you, how did this journey start? You have things in many fields. So, from the starting, did you have anything in your mind, or from the starting, you have anything specific to do, some childhood dream like that? मैं कहूँगी हम चलते गए और कारवां बनता गया. So जर्नी की जहाँ तक बात है, I was just doing what I like to do. Of course, professionally, I'm a qualified scientist, trained scientist. So I started working in the pharmaceutical industry. I worked for 16 long years before realizing that I need to start something of my own. And hence, I started my company, a digital health company, and my journey of entrepreneurship began from there. The writing, it came by itself. Since childhood I have been writing, so I don't see all these titles, all these fields separately. मुझे लगता है ये सब एक क्रिएशन के मल्टीपल पार्ट्स हैं, डिफरेंट वेज हैं क्रिएशन के. जैसे कि अगर आप एक कुक हैं, आप घर में खाना बनाते हैं, तो आप नॉर्थ इंडियन भी बना लेते हैं, आप साउथ इंडियन भी बना लेते हैं, आप मैक्सिकन भी कभी ट्राई करते हैं. सो इट डजंट मीन दैट यू आर you're venturing into new fields. You are doing your work, you're creating something that you love to do, and it has different expressions, different ways. Yeah, so that has been my journey, and yeah, it has been going really well. One thing leads to another. Yeah. And yeah, it carries on. So, ma'am, as you're a scientist and an entrepreneur, and side by side you're a creative writer and a lyricist also. So how did this creative side of yours came out this beautifully, and when was it the time when you realized that I have this creative side also and I have to go in this? No, as I mentioned that I have been writing since childhood. Yeah. So I think my core strength, my core self was always the creative field of writing and creating something. And when I found expression at one point in time in life, when I realized that there is something, despite of having everything, I have a good job, I have a family, but I'm missing something. So it didn't take much time to realize that the missing part was my writing, that I left due to the journey of life, due to my busyness in work and family, which was bothering me so much कि कुछ miss हो रहा है, कुछ छूट रहा है ज़िंदगी में जो पकड़ना है. So I think it was 2010. So I jumped back into writing. I created my own circle and started rewriting, revisiting the work I had been doing since my childhood. एक छोटी सी डायरी हुआ करती थी, वो कहीं पड़ी हुई थी, उसको निकाला गया. My husband played a great role in motivating me and getting me back onto my writing journey, to be very honest. He was the one who said that, uh, you know, he read something and he was like, you write well, you should continue. So yeah, there was a gap of like 10 years, good 10 years. Okay. But once I realized that this is the missing part and I won't feel fulfilled if I leave this, core self of mine just in the pursuit of life, I will not feel fulfilled. So I restarted the journey, and since then, since 2010, it hasn't stopped. It is finding new ways. मैंने पोइट्री से शुरू किया था, फिर शॉर्ट स्टोरीज पे आई, फिर नॉवल लिखा. अभी मुझे लगा पिछले 1.5 साल से कि पोएट्री अपनी जगह है. येस, it reaches classes, but to reach masses you need to convert that poetry into music, and that's what I started doing. 4 गाने आ चुके हैं और अभी एक गाने का वीडियो लॉन्च हुआ है, which is a very heartfelt song, which is not only my, but मैं कहती हूँ कि मेरे पूरे देश के लिए हमारी ट्रिब्यूट है. तो बस
चलते गए, कारवां बनता गया, लोग मिलते गए और चीज़ें होती गई। So, ma'am, as you mentioned about your songs, so for our audience who don't know, so how to like what is your song and how to explore that? ओके सो आपको अगर मेरे गाने सुनने हैं तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे योजना जैन टाइप कीजिए, योजना जैन सॉन्ग्स, यू विल गेट ऑल माय सॉन्ग्स। एक गज़ल है और उसके उसके थोड़े से अशआर मैं आपको सुना देती हूँ एंड देन वी विल कम टू द पैट्रियोटिक वन। चैन की नींद कोसों दूर है लेकिन तुम्हारे ख्वाब में अपना ठिकाना चाहता है दिल। कई जज्बात लहरों में छुपे हैं बेकरारी के तुम्हारे साथ बहने का बहाना चाहता है दिल चैन की नींद। Very beautiful. Yeah, so this song, this ghazal I wrote like 1.5 years back और उसको कंपोज किया मैंने। उसके सॉन्ग बनने की जर्नी took another 6-7 months एंड देन आई वाज लाइक ओके इसकी वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि लोगों को गाना बहुत पसंद आ रहा था। फिर इस पे वीडियो बनी और वीडियो पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। जनरली मैं हिंदी में लिखती हूँ लेकिन उर्दू में मैंने कुछ कोशिश की है क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिएटिव फील्ड में आपको खुद को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब ही है कि आप फैलें, विस्तार लें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, जैसा जिसका मन हो, जैसा जिसको जिस तरफ बहना अच्छा लगता है, लेकिन खुद को रोके नहीं, बांधे नहीं। कई लोग कहते हैं कि अगर आप स्टोरी राइटर हैं तो स्टोरी राइटर ही रहिए, पोएट हैं तो उसी फील्ड में आप आगे बढ़िए, उसी को परस्यू कीजिए। हाँ, वो ठीक है, मतलब स्किल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉलिश करना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हम क्रिएटिव लोगों का दिमाग अलग-अलग दिशाओं में भागता है और वो भाग रहा है तो उसे भागने दीजिए, अपना रास्ता वो खुद ढूँढेगा। पर जॉनर्स डिफाइन करने वाले लोगों में या उसको एडवोकेट करने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ। बहुत सुंदर। अब आपका सेकंड सॉन्ग जैसे आपने जी। मेंशन किया था पेट्रियोटिकल, वो जी। भी सुना दीजिए। जी, तो ये भी एक पोएम के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था। 2000 आई थिंक 16-17 में मैंने एक कविता लिखी थी, मन जनगण मन गाएगा। तो वो कविता मैंने बहुत सारे मंचों से पढ़ी, बहुत सारी एम्बेसीज के प्रोग्राम्स में पढ़ी, बहुत सारे कवि सम्मेलन में पढ़ी और हर बार मुझे यही फीडबैक मिली कि ये सिर्फ आपके नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे हुए एनआरआईज के मन के भाव हैं, जो लोग फील करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो उस कविता की जो यात्रा थी फिर वो आगे चल के गीत बना, एक सॉन्ग बना। उसको हमने 26 जनवरी को रिलीज़ किया था। उसको अब तक 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस पे हमने मिलके कोलैबोरेटिव कम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मेजर शूट तो बर्लिन में हुआ, लेकिन दुनिया भर से कई लोगों ने उसके लिए क्लिप्स भेजी, जिसके हम अब रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं। तो ये गाना एक हमारा सारे एनआरआईज़ की तरफ से, सिर्फ योजना जैन की तरफ से नहीं बल्कि सारे एनआरआईज़ की तरफ से एक पैट्रियोटिक ट्रिब्यूट है टू भारत। और इस 15 अगस्त के तत्वावधान में 5 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आयोजन हुआ जिसमें यूनियन मिनिस्टर बाघेल जी हमारे चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर मारवा थे एज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अवस्थी जी थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आईसीसीआर से रिप्रेजेंटेटिव थे, सुरेंद्र शर्मा जी थे, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी थे। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत बेहतरीन कार्यक्रम, प्राउड वाली बहुत बात भी है। प्राउड मोमेंट था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने वहाँ पे भी यही कहा था कि ये सिर्फ मेरा गाना नहीं है, ये सब एनआरआईज़ का गाना है और मैं यहाँ पर खड़ी होके, इस मंच पे खड़ी होके 3.5 करोड़ एनआरआईज़ का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जो दुनिया भर में अलग-अलग जगहों पे बसे हुए हैं, पर हिंदुस्तान को अपने दिल में रखते हैं। तो 2 लाइन्स मैं गा के सुनाना चाहूँगी। रोम रोम में रचा है जो, हर धड़कन में बसा है जो,
आन बान है शान मेरी, सम्मान मेरा सदा है जो, वो तिरंगा महान तेरी मेरी पहचान, वो तिरंगा महान तेरी मेरी पहचान, सारी दुनिया पे लहराएगा। तन दूर देश की माटी से, पर मन जन गण मन गाएगा। तन दूर देश की माटी से, पर मन जन गण मन गाएगा। Very beautiful. थैंक यू। और इसमें छोटे-छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और मैं यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगी इस बात को कि हम लोगों ने फ़रवरी, मार्च में उस टाइम पे शूट किया जब बर्लिन में बर्फ़ पड़ रही थी। इट वाज़ लाइक -3, और कुछ लोगों ने नंगे पैर डांस किया बिकॉज़ दे वर डूइंग टेंपल डांस। केरला का एक ग्रुप था जो टेंपल डांस कर रहे थे। दे कांट वियर फुटवियर व्हाइल परफॉर्मिंग दैट डांस फॉर्म। सो इसमें बहुत सारे डांस फॉर्म्स हमने फीचर किए और इट्स लाइक showcasing the diversity, the emotions, the colors, the traditional attires of India. जितना हम अपनी कैपेसिटी में कर पाए हमने किया. So but it has come out really beautiful. And this song was very beautiful. Yeah. Lyrics were very beautiful. Thank So you. now coming to a shift to your AI governance advocate part. So AI is very essential to everyone in this time. So I would like you to explain that how do you see AI? See, we are in a world where AI is no longer a speculation. It is our reality. Yeah. And it is probably the most turbulent times of human history when we are seeing this AI transformation. It is changing so rapidly, and it is affecting all of us so rapidly. While sitting here, we may not even realize, but in the background, AI is changing our lives. Yeah. Right? Every minute. So, how I see it technologically a great human advancement. But with every great advancement comes a great responsibility as well. That's where governance, that's where responsible AI comes into picture. And in today's world, where every company, every organization is like in the rat race of getting into AI projects, getting AI ready in the organizations, we need AI governance advocates, and that's the role I'm playing. So I speak at organizations, I speak at conferences, I help leaders in organizations to successfully launch and scale their AI projects while being compliant with responsible AI and AI governance framework. I live in Europe, and Europe always had been a pioneer when it comes to establishing human rights, when it comes to establishing guardrails around any new technology or anything that is going to impact human lives, right? And we are seeing that this definitely is going to have a great impact. So EU AI Act, you must have heard of. EU AI Act is like first of its kind of AI governance framework, right? So I help organizations understand what it is about and how industries can adopt it. Yeah. So I think India plays a great role at the moment on the international stage, going forward to supply AI engineers, AI leads, and develop AI products. But I'm not very sure how well versed we are with the AI governance policies and how we are designing it into our new systems, because these policies are the ones which needs to be designed right from the very start, not like bolting them after everything is ready, because then it will be too late. Yeah, so I would call out all the AI organizations and the companies who are working on these projects to pay attention to these policies, because if you are developing AI products today, you will be launching those products for EU markets, for US markets, and to avoid any disappointment and any regulatory issues later, you should look into the AI governance features and aspects right now. Yeah. Thank you for the message, ma'am. So coming to the same topic, AI one, how do you see AI really like helps people, or just there's a thing
which is very famous and debatable topic in India, that AI is taking over the jobs. So how do you think that AI will really take over the jobs, or maybe it could help people, or maybe it could just cause a big disaster? दोनों चीजें हैं Hmm. स्तुति, दोनों चीजें हैं, वो हर हर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ होता है, Yeah, exactly. राइट। इस केस में थोड़ा ज्यादा होगा, because of course it's a transformational innovative technology. So we have seen in last just 1.5 years generative AI जब से आया है, AI was there long back. Yeah. हम रियलाइज नहीं करते थे, गूगल मैप्स इज AI या स्पॉटिफाई इज AI, बैंकिंग सिस्टम में AI कब से है, लेकिन अब जो AI है वो एक आम इंसान के हाथ में आ रहा है, एक छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी AI टूल्स बना रही हैं, डिप्लॉय कर रही हैं. So yes, of course fear is there. I don't want to comment upon job loss, but there will be impact. There will be impact because the work that humans were doing earlier, now a machine, a system, a software is able to do much more efficiently. Then of course And there will effectively. be impact on the human, the human strength in the organization. On the other hand, I also see that there would be new roles emerging. Hmm. So the message to each and everyone would be not to get afraid, because अगर आप डर भी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, डरने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ चेंज नहीं हम कर पाएंगे. डरने की जगह आप खुद को रेडी करिए कि आप AI रेडी हो. वी नीड मोर AI savvy people. जैसे पहले टेक सेवी कहा जाता था, so now we need AI savvy people. You need to know how to use it responsibly and to upscale yourself in this new AI world, कि आप खुद की जगह को बचा के रख सकें और खुद को इस AI वर्ल्ड में भी रेलेवेंट बना के रख सके. इतना तो तय है कि कोई भी मशीन इंसान को, पूरा गाना सुनो और वीडियो देखो, बहुत खूबसूरत वीडियो बना है जिसमें literally have goosebumps. वो मशीन कभी भी आपको रिप्लेस ना कर सके. आपका क्या स्ट्रैटेजिक, मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिक रोल्स ज़्यादा ह्यूमंस अब ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रोल्स पे जाएंगे और मशीन मुंडेन जो जॉब्स थी हमारी, प्रोसेस ओरिएंटेड जॉब्स थी, वो ले लेंगी. सो हमें अब अगले लेवल पे जाना है, अगले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगले लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी, अगले लेवल ऑफ कॉग्निशन पे हमें जाना है, ताकि मशीन्स हमारे नीचे के लेवल की डेली के काम को ले सके, लेकिन हम उससे ऊपर जाके उसको कंट्रोल कर सकें. So, ma'am, as we all know, you are German based. So, when you moved from India to Germany, what were the hardships that you faced? बहुत सारी. आप अगर नोएडा से गुड़गांव भी शिफ्ट होते हैं तो आपको कितने चैलेंजेस आते हैं शुरू में, है ना. फिर आप कहते हैं कि अच्छा नोएडा में ये अच्छा था, गुड़गांव में ये है, वहाँ पे इस दुकान में ये मिलता था, मैं वो मिस करती हूँ. तो जब आप कंट्री चेंज करते हैं, और वो भी हम अपनी लैंग्वेज, बिल्कुल एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर आता है यूरोपियन कंट्रीज में. सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है, यूरोप में ज़्यादातर कंट्रीज अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं हर तरीके से, ब्यूरोक्रेटिकली, सोशली. ये हमें बात को सिखाता भी है, राइट, कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी भाषा को कैसे बचा के रखना चाहिए और क्यों बचा के रखना चाहिए. खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट चैलेंजेस, लैंग्वेज बैरियर सब फेस करते हैं. हर इंडियन या हर एक्सपैट इंटरनेशनल जो भी माइग्रेट करता है जर्मनी में खासकर, वो लैंग्वेज बैरियर को फेस करता ही करता है. यूएस वाले करते हैं, मिडल ईस्ट, हर कोई करता है. बट देन अगेन इट इज टू अनदर वे टू लुक एट इट इज दैट देयर इज समथिंग न्यू टू लर्न. Yeah, always. Right, there's something new to learn, so you learn a new language, and that improves your skill set, that gives you something positive, something new. So घबराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है. 6 महीने, साल भर, 2 साल आप सीख लेंगे. दूसरी चीज़ आती है आपका, जो बड़ा चैलेंज आता है लोगों को, वो आता है आपका प्रोफेशनल इकोसिस्टम, वैल्यू सिस्टम बहुत डिफर करता है, बहुत चेंज होता है. सो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे सोचते हैं, यूरोपियंस के सोचने का तरीका, जर्मन्स के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बहुत अलग होता है. सो जब भी आप यहाँ से किसी भी देश में जा रहे हैं, आई ऑलवेज एडवाइज, आई ऑल्सो डू पॉडकास्ट
राइटफुली योर्स करके मेरा चैनल है, उसमें मैं इंडो जर्मन कंटेंट बनाती हूँ और लोगों को यही एडवाइस करती हूँ कि आप ये सोच के मत जाइए किसी दूसरे देश में जा रहे हैं कि बस आप बहुत पैसा कमाने लगेंगे, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। पहले कुछ साल आपको बहुत हार्डशिप्स आएंगी। आप अगर फ्लेक्सिबल हैं, अडेप्टेबल हैं, अगर आप खुद को बदल सकते हैं, नया कुछ सीखने की ताकत रखते हैं, तो आप ज़रूर वेंचर आउट कीजिए। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कुड डू, to go to a new territory, a new place full of challenges, and then you restart your life. And come more stronger. Yes. To start something from the scratch, leaving all the privileges, all the identities aside, कि आप यहाँ पे कुछ थे और वहाँ पे कुछ नहीं है और वहाँ पे आप शुरू कर रहे हैं जीरो से और फिर आप कुछ करते हैं, तो आप सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका री इन्वेंटिंग योर सेल्फ कितना स्ट्रांग होता है. So that is the difference. So challenges are there, but you can definitely overcome them. So, ma'am, what is, like you said that you do podcast about Indo-German relationship. So, I just want to ask you that what is that one similarity you see in Indian and German culture? Similarity that we all are humans and we all are empathetic to each other. Germans, as a community, they are very straightforward and they are like very professional. At the same time, they are very serious about what they say, right? Uh, but these things I would say are not similar to how we Indians are. Similarity की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि इंडियंस जैसे अपनी चीज़ों, sorry, maybe you can वो edit कट हो it. जाएगा Yeah, कोई yeah, नहीं. yeah. हाँ. Just thinking, हाँ हाँ, exactly, I was thinking that only. So इंडियंस और जर्मन्स में जो मुझे सबसे बड़ी सिमिलैरिटी लगती है वो है वैल्यू फॉर मनी. Yeah. सो इंडियंस भी काफ़ी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ कितने की है, ये क्या चीज़ हमें इससे सस्ती मिल सकती है, इसकी क्वालिटी कैसी है, राइट? सो वी ऑलवेज हैव, लाइक वी आर अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट एंड वी ऑलवेज वैल्यू The money. हमारा द वर्थ ऑफ मनी. सो जर्मन्स इस मामले में बहुत सिमिलर हैं. सो बट वन थिंग इज दैट अभी जो हम मेट्रोज के इंडियंस देखते हैं, हमें ये बोलने में कि अरे ये चीज़ तो महंगी है, ये हम थोड़ा अपने स्टेटस को सोचते हैं कि अरे ये हम ऐसा बोलेंगे तो कोई क्या सोचेगा, कि नहीं हम ये नहीं बोलेंगे, और हम ब्रांड्स और इसके पीछे काफ़ी भागने Yeah. लगे हैं हम आजकल. जर्मनी में ये थोड़ा सा अलग कल्चर है. दे रन आफ्टर क्वालिटी. सो ब्रांड्स ऑफ कोर्स प्ले अ रोल बिकॉज ब्रांड्स ब्रिंग द क्वालिटी. बट वहाँ पे ये जो फ्रेज है ना, ये मुझे बड़ा शुरू शुरू में अजीब लगता था कि वहाँ पे हर सेकंड सेंटेंस में दे आर सेइंग ओह दिस इज देयर टॉया, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव. सो वो बड़ा सोच समझ के खर्च करेंगे और ये बोलना बहुत आम बात है. महंगी है, नहीं नहीं ये नहीं लेंगे हम, ये बहुत महंगी है. तो हम लोग ये सोचते हैं, पर थोड़ा सा हेजिटेट. आजकल मेट्रो का हमारा कल्चर ऐसा हो गया इंडिया में कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते Yeah. कि हम महंगी चीज़ें नहीं लेंगे. सो हम सोचेंगे लेकिन हम करेंगे नहीं ऐसा. बट बोथ द कल्चर्स, वी वैल्यू मनी, वी नो द वर्थ ऑफ मनी, एंड दैट इज समथिंग, अ बिग सिमिलैरिटी आई सी. Same mindset for Yes. me. Okay, so as we have 3 books of yours here, Mhm. and the one book which caught my eye is Banaras meets Berlin. Yes, Sorry. yes. I have 3 books here, and which book caught my eye is Banaras meets Berlin. Mhm. So coming to this book's quote, how did this Banaras came into the picture? Like from the whole India cities, you just choose Banaras to meet Berlin. Why? Yeah, so when I started writing this book, I was thinking of documenting all my experiences around Germany, right? So I started writing this book when I was there, like 3 years, almost Yeah. years, 2.5 years had passed. तो मैं सोचती थी मुझे बनारस, सॉरी, बर्लिन की जो एनर्जी है ना, वहाँ का जो लोगों का लाइफस्टाइल है, लेड बैक प्लस पार्टी क्लब कल्चर, एंड एट द सेम टाइम यू नो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, बोलने का तरीका, वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था. तो जब मैंने ये कहानी सोचनी, मेरे दिमाग में कहानी डेवलप होनी शुरू हुई, तो मैंने बहुत सोचा कि ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन सा शहर इंडिया में होगा जो मैं बर्लिन के साथ कनेक्ट कर पाऊँ.
And Stuti, to be very honest, the first and last city that came to my mind was Banaras. Banaras. Not because I'm not from Banaras. Everybody thinks that I'm from Yeah. Banaras. I'm not from Banaras. Even I thought that. Yeah. So I'm not from Banaras, but I spent some time there. और बनारस अगर आप गए हैं तो आप जानते हैं कि वो कितनी अनोखा एक हमारा शहर है हमारे देश Another का. level of Yes. vibrations, energies. एब्सोल्युटली. सो वो वाइब्रेशन जब आप बनारस में होते हैं, जो आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं, प्लस वहाँ के लोगों का मिजाज जो है ना, कि बहुत ही कुछ भी बोलेंगे और बहुत आराम की जिंदगी जिएंगे, कोई टेंशन नहीं है और बस भगवान की भक्ति में लीन रहना है. सो ऐसा सा ही मुझे लगा मिलता जुलता जो बर्लिन का एटीट्यूड है. तो बस बनारस मीट्स बर्लिन बन गया. और ये स्टोरी वैसे भी एक रोमांटिक लव स्टोरी है, एक सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा है. सो एक लड़की है जो बनारस से हायर स्टडीज के लिए बर्लिन जाती है और एक बर्लिनर के प्यार में पड़ जाती है, एंड देयर इज सो मच अराउंड इट. Okay. सो रीड दिस स्टोरी एंड लेट मी नो योर फीडबैक. Yeah, that's So how it nice. happened. You all have to read this book. So now, ma'am, coming to your leadership thing, you are an entrepreneur also. So coming to the challenges part, there are many challenges of women face in her life. So how did you tackle with all of the challenges? And if you want to share any of your experience right here, so you can. So challenges are everywhere, Yeah. and wherever you reach, you will face some or other challenge. It's your mindset that defines you and what you achieve in your life. The challenges in leadership roles you face as a woman are more than a man, I still believe, because हमारी जो baseline है वो different है. हम ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं जो अपने आप में चैलेंजिंग है. एट द सेम टाइम विच एवर लेवल यू रीच, you still remain the primary responsible person for your children and for taking care of your family. So वो दुनिया भर में regardless of आप किसी भी कंट्री से हैं, क्या आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, आई थिंक मोर और लेस दिस फैक्ट रिमेन्स द सेम. करेक्ट. सो वो चैलेंजेस सबके लिए हैं, बट आपको अपने अराउंड वो सराउंडिंग्स बनानी पड़ेगी. पहले आपको अपने माइंड में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, और अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आपको वो कैसे भी करके यू हैव टू रीच देयर, यू हैव टू अचीव दैट. एंड द आई थिंक दिस द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस स्टार्ट्स हियर इन योर माइंड. It doesn't start in your surroundings, but the plan that you make in your mind for yourself is the first step towards actually after some time where you see yourself in reality in this life, in this world. मैं बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को जानती हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो खुद है, क्योंकि उन्होंने खुद को इतने सारे बहानों में, इतने सारे एक्सक्यूजेस में, जो है वो रियलिटी है उनकी लाइफ की, कि बच्चे हैं, डिमांडिंग फैमिली लाइफ है, या प्रोफेशनल लाइफ डिमांडिंग है, वो साथ में कुछ और भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते. तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस उनके पास हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा ही बोलती हूँ कि एक्सक्यूजेस आपके पास हैं, लेकिन कभी आपने ये कोशिश भी की कि आप एक छोटा सा स्टेप लेकर देखें उन एक्सक्यूजेस के पार जाकर कुछ करने का, पर उसके लिए वो और कुछ एक्सक्यूज खड़े कर देते हैं. सो देन इट विल नॉट हैपन. Then it will definitely not happen. Regardless of gender, this applies to everyone. Yeah. Right? So it's not about doing everything at the same time. It is never about that. It's about taking the first step. So आपको ये रिग्रेट बस नहीं होना चाहिए कि हमने ये ट्राई नहीं किया. चाहे आप फेल हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए. और just start. कॉन्फिडेंस, सक्सेस नाम की जो आंटियां हैं, आप चल पड़ो, आपको रास्ते में मिल जाएंगे. So, ma'am, you're a very big inspiration for all the wives out there, for all the mothers out there. So, now to conclude this podcast into one advice you want to give to the girls, to the women, to the wives, to the mothers. So, yeah, stage is yours. My life ethos is you can be all you want to be. Just believe in yourself. Just believe in yourself. Message number 1. Message number 2 is don't wait for the perfect moment. Just start. Just start.
and definitely you will reach there. Best of luck. Thank you so much, ma'am. That is it for the Rubaru today. Stay on MSTV. Thank you so much.